Students, very good morning. Ritik, Monica, good morning beta. Naman, Kanishk, Bunty, Tushar, Arpit, Mohit, Sahil, Reena, Bhanu. Very good morning to all. How are you students? कैसे हैं सभी? युगांक, कनिष्क, how are you? कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं? Good. चलिए अच्छी बात है. So students, I'm starting your English class and as you know we are studying about the sentence. We have completed the chapter of sentence and now we are solving the exercise of sentence. Yesterday we solved some questions and some exercises are remaining. So today we will solve the next exercise and that is the recreate a sentence, arrange the jumbled word. Jumbled word are written and you have to make a correct sentence by those jumbled words. So कुछ jumbled word दिए हुए हैं उनसे हमें बनाना है एक correct sentence by the next exercise. C नंबर जो exercise है उसमें देखिए arrange the jumbled word. C number, arrange the jumbled words and make a sentence. सेंटेंस बनाना है जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करके. तो देखिए पहला, आफ्टर कम्स मंडे संडे. आप सभी स्टूडेंट्स ये बनाने की कोशिश कीजिए. देखिए यू कैन मेक और नॉट. फर्स्ट इज आफ्टर कम्स मंडे संडे और यहीं पर हम आगे बनाएंगे, ऐसे ब्लैंक दिया हुआ है आपका. सेकेंड वन इज आवर इज पिकॉक. आवर इज पिकॉक बर्ड नेशनल डे बनाएंगे. ट्राई टू मेक द सेंटेंस ट्रूथ ऑलवेज स्पीक द. हिम ही deliberately ignored no work today have they. चलिए, these are the jumbled words and we will create a new sentence by these jumbled words. Very good Naman, Monica, very good beta.
मोनिका ये तो गड़बड़ कर दिया, मोनिका तो गड़बड़ कर दिया आपने। नमन यू आर करेक्ट। फर्स्ट देखिए आफ्टर कम्स मंडे संडे, पहले तो बताइए आफ्टर कौन किसके आफ्टर आता है, मंडे संडे के आफ्टर आता है या संडे मंडे के आफ्टर आता है? आफ्टर यानी कि बाद में। सो बिल्कुल मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे। सेकेंड है आवर इज पिकॉक बर्ड नेशनल द पिकॉक is our national bird। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं आवर नेशनल बर्ड इज द पिकॉक, दोनों बन सकता है। द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, इट इज करेक्ट। और अगर आप बनाते अवर नेशनल बर्ड इज पिकॉक तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, दोनों ठीक है। ट्रूथ ऑलवेज स्पीक द, यानी कि हमेशा सच बोलने की बात है। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। हिम ही deliberately ignored, so he ignored him deliberately, he ignored him deliberately। नो वर्क टुडे हैव दे, आज उनके पास कोई काम नहीं है। दे हैव नो वर्क टुडे। अच्छा, टुडे को आप चाहे आगे लिख लीजिए और चाहे लास्ट में लिख लीजिए, कोई रॉन्ग नहीं होगा। टुडे दे हैव नो वर्क करेक्ट है, दे हैव नो वर्क टुडे भी करेक्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। नोट दिस सेंटेंसेस रिटन बेटा। साहिल, you will get the answer of this question on your mobile phone, okay, and you are getting the answer of this question, yes na? So don't ask again and again this question, you have got the answer of this question on your mobile phone, okay? So have you written all? Have you written? Very good. If you have written, then give thumb impression. Bunty, Naman, Tushar, Reena, Bhanu, not written. Sahil, what I am saying, listen to me carefully. You will get the answer of this question on your mobile phone. Okay, okay students, so all have written. Now the next question is, some sentences are written and you have to tell about that what is the kind of the sentence। सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा काइंड यूज हुआ है सेंटेंस का यहाँ पर। ठीक है, चलिए
सो सी नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नाउ वी कम ऑन द डी नंबर एक्सरसाइज. डी नंबर है राइट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के काइंड राइट करने हैं आपको. फर्स्ट सेंटेंस है आपको जो दिया हुआ है, विल यू हैव अ लिटिल मोर टी. Will you have a little more tea? Interrogation mark. कुछ सेंटेंस तो ऐसे हैं जो उनके मार्क से ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं. He would like to stay here. He would like to stay here. He would like to. Yes, Sakshi. Ask beta, what are you asking, Sakshi? Rama is not a good singer. Beta, don't ask this question again and again. Sakshi, just I told Sahil the answer of this question. Don't ask this question again and again. Allow me to go to the market. Allow me to go to the market. Allow me to go to the market. May you live long. May you live long. और भी चलिए अब फटाफट से इनके काइंड्स बता दीजिए. फर्स्ट का आइडेंटिफाई कीजिए. विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? सेकेंड वन, थर्ड, fourth and last fifth. 5 sentences are written here and you have to identify the kind of sentence. Very good. Give the answer of first sentence. Will you have a little more tea? बिल्कुल interrogation mark लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है. So this is the interrogative sentence. Which kind of this? Interrogative sentence is this. Very good, Naman. Say about the second sentence. He would like to stay here. वो यहाँ पर ठहरना चाहता है. वो यहाँ पर ठहरना चाहेगा. विश कर रहा है. क्या कर रहा है? विश कर रहा है. He would like to stay here.
ही वुड लाइक टू स्टे हियर, सोचो बोलो, विश कर रहा है। ही वुड लाइक टू स्टे हियर, विश कहां पर की जाती है, विश कहां की जाती है? He would like to stay here, हाँ बिल्कुल, वो यहां पर ठहरना चाहेगा, विश कर रहा है। ऑप्टेटिव, रमा इज नॉट अ गुड सिंगर, रमा अच्छी सिंगर नहीं है। नहीं, ये ऑप्टेटिव में शामिल नहीं होगा, लेकिन असर्टिव में ही शामिल होगा, असर्टिव में ही शामिल होगा ये। क्योंकि जो विश जो होती है उसमें विश और प्रे गॉड से होती है कि भगवान करे ऐसा हो, ठीक है। सो सेकंड, ही वुड लाइक टू स्टे हियर, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव। असर्टिव में पॉजिटिव फॉर्म है, असर्टिव में पॉजिटिव फॉर्म है। रमा इज नॉट अ गुड सिंगर, रमा अच्छी सिंगर नहीं है, बिल्कुल असर्टिव है और असर्टिव में नेगेटिव फॉर्म है, असर्टिव में नेगेटिव फॉर्म है। असर्टिव और नेगेटिव फॉर्म है। असर्टिव में सेंटेंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है। अलाउ मी टू गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। कैसा है ये? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि अलाउ मी टू गो टू द मार्केट, प्लीज मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कि मैं मार्केट में चला जाऊं। सो दिस इज द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। मे यू लिव लॉन्ग, हाँ यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है, प्रे की जा रही है, विश की जा रही है कि आप लंबी उम्र जियो। सो दिस इज द ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट pick the subject in the following sentences, then write in the blank space. कुछ सेंटेंस ये मैंने आपको करवा दिया था, पहले ही सॉल्व करवा दिया था, ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपकी है, जिनमें सब्जेक्ट्स पिक करने थे। यू हैव डन दिस एक्सरसाइज एंड F नंबर एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड। कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस रिटन हैं और उनमें आपको अपनी तरफ से सही WH वर्ड का यूज करके उन्हें इंटेरोगेटिव बना देना है। तो बिल्कुल हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर F नंबर एक्सरसाइज। F, fill in the blanks with suitable क्वेश्चन वर्ड्स। सही क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस को बनाना है इंटेरोगेटिव। फर्स्ट, डैश हैज बीन appointed as the head girl
ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। डैश ऑफ यू स्कोर्ड द मैक्सिमम रन्स, मैक्सिमम रन्स। थर्ड, डैश डू यू नीड, एक्सरसाइज ई जो है ये आपको जब मैंने सब्जेक्टिव प्रेडिकेट बताया था उस टाइम सॉल्व करवाया था ना बेटा। ई नंबर एक्सरसाइज आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस में ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट जब मैंने पढ़ाया था उस टाइम ये वाली एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई थी, याद करो आप। 4 नंबर, डैश डू यू गो टू स्कूल, बाय बस और ऑन फुट। 5 नंबर, बुक्स आर you buying for your sisters, क्वेश्चन मार्क। तो आप ये सेंटेंस जो है वो राइट कर लीजिए। करेक्ट WH वर्ड का यूज करके हमें इनको क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। अपनी मर्जी से आप सेंटेंस को समझिए और जितने भी WH वर्ड हैं, व्हाट, होम, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, विच, है ना, जो भी WH वर्ड सही यहाँ फिट होता है उसे फिट करके आपको इसे बना देना है क्वेश्चन सेंटेंस। जी नंबर जो एक्सरसाइज है, द वर्ड्स इन द फॉलोइंग ग्रुप कैन बी रीअरेंज्ड टू फ्रॉम आइदर अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन। राइट बोथ द स्टेटमेंट्स एंड द क्वेश्चन। एग्जाम्पल, इफ ऑफ वेरी नूडल चाइल्ड। अच्छा, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस भी नहीं है, जम्बल्ड वर्ड हैं, जम्बल्ड वर्ड हैं, उनको रीअरेंज करके आपको इंटेरोगेटिव और जो है असर्टिव सेंटेंस बनाना है। पहले असर्टिव सेंटेंस बनाना है, फिर उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, बना सकते हैं, बिल्कुल मैंने सिखाया है आपको, बताया है आपको। अभी सेंटेंस मेकिंग बताया था, रीअरेंज किया था वर्ड्स को, तो हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया। और उसे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, जैसे ही इज प्लेइंग, अगर आपको इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब से पहले रिटर्न होती है, उसे उठाकर अगर हम सबसे आगे राइट कर देते हैं, जैसे इज ही प्लेइंग, तो ये इंटेरोगेटिव बन जाता है। सो हेल्पिंग वर्ब्स को सबसे पहले लिख करके उसका प्लेस चेंज कर करके हम उसे इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। तो जो जम्बल्ड वर्ड हैं उनसे सबसे पहले तो आपको असर्टिव सेंटेंस क्रिएट करना है, आफ्टर दैट यू विल क्रिएट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो जी नंबर एक्सरसाइज ऑल्सो यू विल सॉल्व। एंड द लास्ट क्वेश्चन H इज व्हाट इज सेंटेंस। तो आपको लिख देना है व्हाट इज सेंटेंस, डेफिनेशन राइट कर देना, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट इट्स पार्ट्स नेम, और छोटा सा नोट राइट करना है कि इसके पार्ट कौन से होते हैं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपको थोड़ा सा राइट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, विद दीज एक्सरसाइज our chapter is completed and tomorrow we will study about the next chapter and that is the parts of speech। तो कल हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आप आज के लिए सभी स्टूडेंट्स होमवर्क में you will solve this exercise and you will learn the chapter of sentence। Okay students, so we will meet again in tomorrow's class। So thank you, bye, have a nice day।